Good morning, class. Welcome again to this lecture. We are studying the fifth unit, that is relational database design and normalization. So, in short, we'll revise what you have seen up till now. Good database design. So, there are certain principles for good database design. That is, duplication must be avoided. There must be correctness and completeness of information. Based on that, you can take decisions. You can be able to divide your subject into table to reduce data. Then you can provide information with joins and etc. Because a good database helps you accuracy, ensuring accuracy and integrity of information. That means a correct information and consistent information. What is normalization then? It is a process of organizing the database to minimize redundancy, to eliminate characteristics which are undesirable like insertion, deletion and update anomaly. The values of composite keys must be null, and in a table the attributes must be automatic, that is atomic, and normalization divides larger table into smaller table. So what are these anomalies? We have seen one example here. If you try to insert a value here in this table, then you would not be able to insert the value, because if some employee who has joined and not been allotted the department, such kind of employee's value you cannot insert here. Update anomaly: if you want to update the address of a particular person here, Rick, his address is stored at two places, so you will not be able to update it both, or you have to update at both places. If at one place you left, then there will be issue, so that is anomaly. Same is about delete anomaly. You cannot delete employee address, because if you want to delete employee address, you have to use employee ID and employee department as a key, wherein the entire row will be deleted. So this was the anomaly with delete. Then we have seen first normal form and second normal form. What first normal form says? An attribute must not hold multiple values. That is, it must be atomic. That means if the employee name is Harshal, it should not be dividable further. If employee name, it should not be dividable further. Now here you can see employee mobile. Here one employee is having two mobiles. So this violates the first normal form. So what we will do? We will create two rows for it. If you have two mobile numbers for one person, we will create two rows for it. So this is in first normal form. In second normal form, 9 prime attribute is dependent on proper subset of candidate key. That is, if table is in first normal form, so here the table looks into the first normal form. But here the 9 prime attribute is dependent on the proper subset of any candidate key of the table. So now what is this second normal form? Then second normal form, then again third normal form, and then rest of the things. So we'll see them again. For that we are going to get certain understanding, but here we'll break this table: teacher ID, teacher and teacher name, and teacher ID and subject. So now it is in a second normal form, because from teacher ID you can get subject, and from teacher ID you can get also teacher age and name. So here is the case: teacher ID, from teacher ID you can get subject at one place and teacher age, and from teacher ID you can get teacher name and age at another place. So that is, now the table is in second form, normal form. What does second normal form say? No non-prime attribute is dependent on proper subset of any candidate key of the table. That is, an attribute that is not part of any candidate key is known as non-prime attribute. So name is not dependent on teacher age. See here, teacher ID, from this you can get subject, from this you can get age, from this you can get name. But you cannot get name from age, you cannot get subject from age, or from age you cannot get subject, from age you cannot get teacher name. So from ID you are going to get the subject, from ID you are going to get the age, and from ID you are going to get the teacher name. So what we have done, we have divided into these two tables. Now that is second normal. What we will do, we will again study this, but before that we have to understand few concepts. So this is where we begin our actual video today. So we have to study functional dependency. Now what is this functional dependency? If one attribute is dependent on other, that is called as dependency. Functional dependency is a constraint that determines the relation of one attribute to another attribute in database. रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट का सेकंड एट्रीब्यूट से क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो डिफाइन करता. इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. अब डिपेंडेंसी से क्या होता है, एक प्रॉपर क्वालिटी का डेटाबेस रहता है, एंड इट प्लेस अ वाइटल टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड डेटाबेस डिजाइन. अब फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको गुड डेटाबेस और बैड डेटाबेस डिजाइन पता चलती है.
तो हमने इतना तो बोल दिया फंक्शनल डिपेंडेंसी की बार। तो पहले देख लेते फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखो ये एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी। अब अगर सपोज हमको एम्प्लॉय नंबर पता है 1, तो एम्प्लॉय नंबर अगर 1 है तो उसका नेम हमको पता रहेगा, बिकॉज दिस इज अ यूनिक एट्रीब्यूट। ये यूनिक एट्रीब्यूट है, मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज और प्राइमरी की हियर। यहाँ पर ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है। तो एम्प्लॉय नंबर से आपको एम्प्लॉय नेम मिल सकता है, बिल्कुल। एम्प्लॉय नंबर से आपको उसकी सैलरी भी पता चल सकती है, और एम्प्लॉय नंबर से आपको उसकी सिटी भी पता चल सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, ये किस पे डिपेंड करते, ये डिपेंड करते एम्प्लॉय नंबर पे। तो इसको सपोज अगर मैंने एक्स बोला, तो ये बाकी सारे जो तीनों मिला के मैं इनको बोलूँगा वाई। तो दिस वाई मतलब ये सारे जो तीनों एट्रीब्यूट्स है, दिस वन अगर इसको मैं बोलूँ वाई और इसको बोलूँ एक्स, तो ये इनके बीच में रिलेशन है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो दिस इज वी आर शोइंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ x ऑन y इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट ऑन x। मतलब ये x लिखा और ये y लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो y है ये इस x पे डिपेंडेंट है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। दैट इज व्हाट वी हैव शोन हियर। x is on y is represented, the functional dependency of x on y is represented by y is dependent on x. Now here from the value of employee number we can obtain employee name, city, salary, etc. By this we can say that city, employee name and salary are functionally dependent on employee number. So this employee name, salary and city, they are functionally dependent on employee number. So that is functional dependency. Now in functional dependency we have different kinds of dependency like multi-valued and so many. So let us go for it. Types of functional dependencies. Now we understand what do you mean by functional dependency. So there are different kinds of functional dependencies. So they are multi-valued functional dependency, trivial functional dependency, non-trivial functional dependency and transitive dependency. These are the 4 types: multi-valued, trivial functional, non-trivial, transitive. So what do you mean by multi-valued functional dependency? It occurs in situation where there are multiple independent multi-valued attributes in a single table. एक ही टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, एक ही टेबल में, वेयर देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंस इज कंप्लीट कंस्ट्रेंट बिटवीन 2 सेट्स ऑफ अ रिलेशन. इट रिक्वायर्स दैट सर्टेन टेबल्स बी प्रेजेंट इन अ रिलेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हमको सब समझ में आ गया. हम ये टेबल देखते हैं. फ्रॉम दिस टेबल विल क्लियरली अंडरस्टैंड मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कार मॉडल्स. तो कार के मॉडल है सपोज H001, 005, H10, H33 एट्सेट्रा. तो इसके आगे उनके मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखे हैं. ये सपोज 2017 है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और इसका कलर लिखा है, इट इज़ मेटालिक कलर. नेक्स्ट ट्यूबल को हम लोग से कोई भी ट्यूबल के दे, जैसे H005 है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग है 2018, कलर मेटालिक. अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसी साल दूसरी भी कार मैन्युफैक्चर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कलर वो भी हमको पता है. तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर पता है तो आपको कलर पता हो सकता है क्या? नहीं. अगर आपको कलर पता है तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर आपको कार का मॉडल पता है तो उस पर से आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर दोनों पता कर सकते हो. फ्रॉम कार मॉडल यू कैन नो द मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं. मतलब ये हो गया मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की. ये कई सारी वैल्यूज है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन ये डिपेंड किस पे? ये सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे. तो क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट की वजह से हमको पता चलते ही ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये इस एक एट्रीब्यूट्स की हमको वजह से हमको ये सब पता चल सकता. तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई. लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी है, कलर भी है, और भी कुछ हो सकता. तो इसको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी. In this example, MF underscore year and color are independent of each other but dependent on car model. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कार मॉडल और ये कार मॉडल लाइक दिस. दैट मीन्स दिस मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल एंड दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कलर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट कार मॉडल. So both these attributes are dependent on this attribute car model. So here you can say it is a multi-valued dependency in DBMS.
अब इसकी डेफिनेशन हमको अच्छे समझ में आती है। इट ऑकर्स इन सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन अ सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल में कई सारे इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। जैसे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर का और कलर का कोई लेना देना नहीं, इससे ये नहीं पता चलेगा, ना इससे ये पता चलेगा, लेकिन इस पर से ये दोनों पता चलेंगे। तो ये इंडिविजुअल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ये इंडिविजुअल भी है और ये साथ में फिर इनकी कई सारी वैल्यूज भी, और ये डिपेंड कर रहे एक इस वैल्यू पर। तो ऐसी डिपेंडेंसी को हमने क्या बोला है, वी हैव कॉल्ड इट एज मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। तो पहला हो गया। सेकंड हमने देखा था ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Trivial functional dependence is a set of attributes which are called trivial if the set of attributes are included in that attribute. Set of attributes included in that attribute, that is, if y is functionally dependent on x, is a trivial function if y is a subset of x. मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो y है ये x पे कब फंक्शनली डिपेंडेंट रहेगा, जब y भी x का सबसेट रहेगा। अब x का सबसेट रहेगा मतलब क्या रहेगा, तो इसको हम यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो कॉलम्स है, वन इज एम्प्लॉय आईडी एंड EMP_ID एंड EMP_name. नाउ फ्रॉम EMP_ID यू कैन गेट EMP_name. एम्प्लॉय आईडी पर से आपको एम्प्लॉय नेम मिलेगा। नाउ एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम ये दोनों हमको एम्प्लॉय आईडी ट्राइवियल है, इज अ ट्राइवल, ये ट्राइवियल डिपेंडेंसी है। ट्राइवियल डिपेंडेंसी मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी इसी का सबसेट है, इसी का सबसेट है। मैं तो थोड़ा सा समझा था आपको सबसेट मतलब क्या होता है। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय रहेगा, कोई भी एक एम्प्लॉय, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। समझो हमने एंटिटी समझे कि एम्प्लॉय एक एंटिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसका एक आईडी होगा, उसका एक नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका सिटी होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा, उसका पिन कोड होगा, उसका जीमेल ईमेल जो भी है, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। तो मतलब ये जो है एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें कैसी उसकी सबसेट है। मतलब जैसे सपोज एक एट्रीब्यूट है आपके पास एम्प्लॉय, तो उसका फिर आईडी हो गया, उसका फिर नेम हो गया, तो ये उसी पर से मिले। जैसे अगर अपने को ये उसी के सबसेट है, तो इसी तरह एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये टेबल में ये इसका ही सबसेट है, इस टेबल का ही सबसेट है ये एम्प्लॉय आईडी। इसलिए क्योंकि अगर हमको एम्प्लॉय आईडी पता है तो उसका नेम पता चलेगा, मतलब वो उसका रिलेटेड है, वो उसका सबसेट है। सबसेट है क्या समझते ना, जैसे सपोज यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है, लेकिन ये ए और ये बी साथ में भी आ सकते हैं, ये ए की वजह से ही बी है, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट, इसी का पार्ट है। तो इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं इज अ ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एज EMP_ID इज ए सबसेट ऑफ EMP_ID EMP_name। तो ये हो गया था ट्राइवियल डिपेंडेंसी। क्या बोला था हमने ट्राइवियल डिपेंडेंसी में, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड ट्राइवियल इफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड इन दैट एट्रीब्यूट, दैट इज y is functionally dependent on x is a trivial functional dependency if y is a subset of x। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने इसको बोला if this is x and this is y, then y is functionally dependent on x, but this dependency is trivial functional dependency because this particular is a subset of both EMP name and EMP_ID। सबसेट मतलब उसी का वो एट्रीब्यूट है। तो ये हमने देखा ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट देखते फिर नॉन ट्राइवियल में क्या होगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि ट्राइवियल में जैसा उस पर डिपेंडेंट रहता, तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते पहले। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज नॉन ट्राइवियल डिपेंडेंसी ऑकर्स व्हेन बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए होल्ड्स, मतलब बी ए पे डिपेंडेंट है बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। जैसे प्रीवियस इसमें क्या था, y was dependent on x but y was a subset of x. Here b is dependent on a, functionally dependent on a, but b is not a subset of a. In a relationship, if attribute b is not a subset of attribute a, then it is considered that non-trivial dependency. Non-trivial dependency इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। फ्रॉम द कंपनी यू कैन गेट द नेम ऑफ द CEO। ये कंपनी का CEO ये है, और अगर आपको CEO का नाम पता है तो जिसका नाम XYZ है उसके आपको H पता चलेंगी। ठीक है, फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी यू कैन गेट द नेम ऑफ द CEO। कंपनी से CEO का नाम पता चला। अब CEO का नाम अगर आपको पता है तो जिसका नाम पता है उसकी आपको एज भी पता हो सकती। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि CEO इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, तो हम लिख सकते हैं ये X, ये Y, और ये Y इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस। अब इसको हम Z बोलेंगे सपोज, और एज वो हमको मिलती इस पर से, नेम पर से, तो Z इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन Y।
y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x एंड z इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है। अब इसमें हम एक भी बोलते हैं, इफ वी नो द कंपनी वी नो द सीईओ नेम बट सीईओ इज नॉट अ सबसेट ऑफ कंपनी। अब इसमें एक सिंपल सी बात ये आ गई कि ये जो कंपनी इसका सबसेट सीईओ नहीं है, सबसेट नहीं है मतलब ये इसका पार्ट नहीं। जैसे अगर आप कंपनी एक एंटिटी लेंगे तो उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सिटी, उसका बजट और XYZ, लेकिन उसका सीईओ वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप सीईओ बोलते तो सीईओ के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सीईओ का एट्रीब्यूट होगा नेम, उसका एड्रेस, उसका कंपनी नेम, लेकिन कंपनी अगर आप लोगे तो उसका सबसेट ये जो नेम्स है यहाँ पर ये नहीं है। सीईओ इज नॉट अ सबसेट ऑफ कंपनी। तो अब क्योंकि हमको सीईओ कंपनी पे डिपेंडेंट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, सीईओ इज नॉट द सबसेट ऑफ कंपनी, तो इसलिए ये कौन सी होगी, नॉन ट्रिवियल, दिस इज नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। समझ में आ गया कि सीईओ इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी, दिस पर्टिकुलर सीईओ एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस एट्रीब्यूट कंपनी, बट सीईओ इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस कंपनी, मतलब वो कंपनी का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब वो कंपनी का कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है सीईओ। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। अब उसके बाद में अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा था ट्रिवियल, अब देखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होगा, कंपनी से आपको सीईओ का नाम मिलेगा। अगर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप उसका सीईओ का नाम पता कर सकते हो, और अगर आप जिसका नाम पता है आप उसकी एज पता कर सकते हो। मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं था, तो आपने इसको क्या बोला था कि ये इनके बीच में क्या होगी, ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब वही एग्जांपल को हम ऐसे देखते हैं कि कंपनी से हमको सीईओ का नाम मिला, ये मिल गया सीईओ का नाम सत्या नडेला, यू मस्ट बी नोइंग दिस नेम, गूगल, सुंदर पिचाई, अलीबाबा, जैक मा, and from this particular name you are getting the age of that person. So his age is 51, Sundar Pichai his age is 46, Jack Ma his age is 54, Alibaba, Google and Microsoft, ये आपके ख्याल में आ गया। तो अब ये इससे मिलता, ये इससे मिलता, ठीक है। सो विल सी अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच हैपन्स व्हेन इट इज इनडायरेक्टली फाउंड बाय टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इसका मतलब देखते क्या होता, तो यहाँ के बोलते फ्रॉम कंपनी एंड सीईओ। अगर अपने को कंपनी पता है तो हमको सीईओ का नाम पता चलता, तो दैट इज सीईओ इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद में अगर सीईओ पता है तो उस पर से हमको उसकी एज पता चलती, तो इस पर से हम ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी अगर पता है तो उस पर से हम एज निकाल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। यानी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं और आपका कोई एक दोस्त है तो दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त हो सकता, तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि आपका एक दोस्त है x और दूसरा दोस्त है, और x का दूसरा दोस्त है y, तो आप भी y के दोस्त हो सकते हो। तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी रहती दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो वी हैव सीन फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर मल्टीवैलिड डिपेंडेंसी मतलब क्या होता, उसके बाद में ट्राइवियल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता, फिर उसके बाद में नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता, एंड लास्ट वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी हमको पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम नॉर्मलाइजेशन का थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, बेसिकली सेकंड भी देखेंगे, लेकिन जब थर्ड देखेंगे तब बहुत प्रोमिनेंटली वील हैव टू यूज दिस थिंग्स, वहाँ पर हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब इसके देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के एडवांटेज क्या है, ये तो हमने देख लिया। इट अवॉइड्स डाटा रिडंडेंसी, मतलब डाटा रिडंडेंसी कैसे अवॉइड करिए, अगर आपने प्रॉपरली डिपेंडेंट बनाए फंक्शंस को तो फिर उससे आपको डाटा, एक ही डाटा 10 जगह पे स्टोर करना नहीं पड़ेगा। इट हेल्प्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई बैड डिजाइंस, डिफाइन मीनिंग्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ डाटाबेस एंड हाउ इट हेल्प्स। अब ये हेल्प कैसे करता फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये भी हमको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने ये तो देख लिया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग। सो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो एक और पार्ट है दैट इज डिकम्पोजिशन। तो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देख लिया, अब नेक्स्ट पार्ट होता है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, तो अभी तक हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म वो जो देखा था कि हमने एक सपोज टेबल बनाया था, एक टेबल बनाया, उसने हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब वो टेबल में इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में क्या हो गया कि एक एक इन्फॉर्मेशन डबल हो रही थी, अपडेट इंसर्शन की एनोमली हो रही थी। तो हमने क्या किया था, टेबल को डिकम्पोज किया था, फिर मतलब 1 पर से 2, 2 पर से 4 ऐसे टेबल बनाए।
लेकिन अगर हम लोग ऐसे जब बनाते टेबल तो उससे भी हम क्या करते, डाटा को प्रॉपरली स्टोर कर सकते। यानी एक डिकम्पोजिशन, सपोज नॉर्मलाइजेशन ही है डिकम्पोजिशन, नॉर्मलाइजेशन का ही दूसरा नाम डिकम्पोजिशन है। जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं एनोमलीज की वो आप डिकम्पोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन के टू टाइप्स है, लॉसी डिकम्पोजिशन एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। द नेम इटसेल्फ सब्जेक्ट लॉसी, लॉसी मतलब जिसमें हमको लॉस हो रहा। अब यहाँ पे क्या लॉस होगा हमको, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, वी आर स्टोरिंग डेटा, सो देयर मस्ट बी लॉस ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हमारा कुछ तो भी डेटा लॉस हो रहा है। सो इफ यू आर लूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा देन इट इज कॉल्ड एज लॉसी डिकम्पोजिशन। और जहाँ पे आपका कोई भी डेटा लूज नहीं हो रहा उसको बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन मतलब क्या, आपने एक टेबल पर से दो टेबल बनाए और आपका डेटा कहीं भी मिस नहीं हुआ, मतलब जब आप दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा डेटा एज इट इज मिलेगा, तो वो हो गया लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लेकिन आपने एक टेबल पर से दो टेबल बनाए और जब आप उसको ज्वाइन करने जाते हो तब आपको वो टेबल नहीं मिलता जो आपका एक्चुअल पहले था, तो उसको फिर आप क्या बोलेंगे, लॉसी डिकम्पोजिशन। तो व्हाट इज डिजायर्ड, हमको चाहिए क्या, ऐसा कुछ तो भी चाहिए क्या हमको, कि जैसे सपोज हमने 10 रुपये लिया और उसकी चेंज कराई और 5 रुपये दो जगह अलग कर दिए और जब उसको मिलाया तो 10 रुपये पूरा बन गया। तो ये चाहिए हमको, या फिर हमने एक 10 की नोट का चेंज कराया, एक 5 रुपये, एक 2 रुपये और एक 2 रुपये और 1 रुपये, और जब जमा किए तो 5, 2 और 1 ही रुपये 8 रुपये मिले, 2 रुपये नहीं मिले, तो 2 रुपये चले गए कहीं। तो क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमने जो भी डिकम्पोज किया वो एज इट इज हमको मिलना चाहिए। सो लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज रिक्वायर्ड। अब डिकम्पोजिशन मतलब वो नॉर्मलाइजेशन ही है, लेकिन हमको इसलिए पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं तो वो लॉसलेस है या नहीं, वो लॉसी तो नहीं है। तो उसके लिए हमको ये पता होना कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन और लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ensuring database structure is suitable for general purpose querying and free of insertion, updation and delete anomalies that could lead to loss of data integrity। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन रहा, नॉर्मलाइजेशन रहा, मतलब क्या कि उसमें ये सारे इश्यूज इंसर्शन, अपडेट और डिलीट एनोमलीज दूर हो जानी चाहिए। और अगर लॉसी डिकम्पोजिशन रहा तो फिर वो हमको यूज नहीं करना है। So now we'll try to understand what do you mean by lossless and lossy decomposition. Decomposition in BMS removes redundancy, anomalies and inconsistencies from a database by dividing table into multiple tables. एक टेबल को कई एक टेबल में डिवाइड करके इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करता है। इन रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल स्कीमा इज नॉट अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म देन डिकम्पोजिशन इज डन। अगर वो अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो अपने नॉर्मल फॉर्म में देखा था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कल हमने एक एग्जांपल देखा था ना कि एक बहुत बढ़िया टेबल है जिसमें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर की है, लेकिन उसमें भी इंसर्शन, अपडेशन और डिलीट एनोमलीज आती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है वो टेबल में उसको हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उसको आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की है आप उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हो। तो वो टेबल फिर किस काम का, वो तो सिर्फ रीड ओनली हो गया, सिर्फ रीड ओनली टेबल हो गया, आपको कुछ नया नहीं डालते आ रहा, एडिट नहीं करते आ रहा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन किया था, उसको स्प्लिट किया था। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते देन डिकम्पोजिशन इज डन, तो मतलब भी आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो। अ स्कीमा इज डिवाइड इनटू 2 और मोर रिलेशंस इफ द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस जॉइन। तो एक से ज़्यादा टेबल में हम एक टेबल को डिवाइड करते, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो आपको सबसे पहली कंडीशन है that is R1 यूनियन R2 should be is equal to R। जैसे एक टेबल है, टेबल का नाम है सपोज R, एक R टेबल है, उस पर से हमने दो टेबल बनाए, एक बनाया R1, एक बनाया R2। तो जब ये दोनों मिलाएंगे तो हमको हमारा R जो टेबल है वो मिलना चाहिए, मतलब एज इट इज मिलना चाहिए। तो अगर हमको ऐसा मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस टू चेक फॉर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, कंडीशंस टू चेक फॉर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, ठीक है। ऑन टेकिंग यूनियन ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्या लेना है हमको, यूनियन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2। R1 और R2 दो रिलेशन है, मतलब रिलेशन मतलब टेबल, एक टेबल है R1, एक टेबल है R2, ये दोनों टेबल हमने लिया। अब जब आप इसका रिलेशन मतलब जब इसका ज्वाइन लेते हो, यूनियन लेते हो, तो वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू R। मतलब वही एग्जाम्पल कि हमने जो पहला टेबल स्प्लिट किया था दो में, जब हम उनके ऊपर कमांड यूज करते हैं यूनियन, ज्वाइन कमांड यूज करते, तो क्या होना चाहिए, वो रिलेशन R जो प्रीवियस टेबल हमको एज इट इज मिलना चाहिए। दैट मीन्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन R, मतलब R के जो एट्रीब्यूट्स है या तो R1 में होना चाहिए या तो R2 में होना चाहिए। और जब हम ज्वाइन या यूनियन कमांड एग्जीक्यूट करते तो डुप्लीकेट को
हटा देता, वो डुप्लीकेट को हटा देता। तो वो डुप्लीकेट को हटाने से हमको जो आर टेबल है एज इट इज़ मिलेगा। अगर आप डुप्लीकेट को रिटेन करना चाहते हो, आप कॉमन जॉइन रखना चाहते हो जिसमें आपको डुप्लीकेट भी चाहिए, तो फिर आपको वो वैल्यूज भी मिल सकती। तो एक से ज़्यादा बार वैल्यू स्टोर है, बट हमको एग्जैक्टली एज इट इज टेबल चाहिए, तो हम वहाँ पर यूनियन कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह का जो डिकम्पोजिशन है उसको आप बोलेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है R1 यूनियन R2, मतलब ये R1 एक रिलेशन यूनियन R2। अब R1 के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, R2 के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इज इक्वल टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ R। मतलब जब R1 और R2 का यूनियन होगा तो R1 और R2 के जितने एट्रीब्यूट्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ R। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब अगर हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दिस कंडीशन फेल्स, देन नो नीड टू चेक फर्दर एज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट ऑफ द लूज जॉइंट डिकम्पोजिशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो आपकी पहली कंडीशन है वही अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही सपोज, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वही आपने सेटिस्फाई नहीं की। तो मतलब ये जो आपका जॉइन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, फिर लॉस सी जॉइन हो जाएगा। वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जॉइन कैसा हो जाएगा, लॉसी। जो आपका डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, लॉसी। उस यूनियन से आपको क्या मिल रहा है, लॉस हो रहा, आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही, तो फिर आप आगे चेक ही नहीं करेंगे। सेकेंड देखते हैं, ऑन डूइंग इंटरसेक्शन R1 एंड R2 द रिलेशन मस्ट नॉट बी नल। अगर आपने उसका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन्वर्टेड U। तो अगर आपका एक टेबल है R1, दूसरा टेबल है R2, उसका आपने इंटरसेक्शन किया, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये ऐसा और ये ऐसा, तो उसमें कुछ भी कॉमन अगर एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे सपोज एक टेबल में है ABC और दूसरी टेबल में है DBJ, तो जब आप इसको इंटरसेक्ट करोगे तो कॉमन एट्रीब्यूट जो रहेगा आपको सिर्फ उतना मिलेगा, दैट इज B। लेकिन अगर दोनों में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो आपको क्या आएंगे, नल वैल्यू आएंगे। तो नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब हम डिकम्पोजिशन जब करेंगे तो हमको जो भी टेबल आप बनाएंगे उनमें एक को टेबल को आप दो में स्प्लिट करेंगे। सपोज एक टेबल से आपने दूसरे दो नए टेबल बनाए हैं, यानी एक टेबल पर से आपने एक टेबल एज इट इज रहने दिया, उसको स्प्लिट किए और उस पर से दो नए टेबल बनाए, तो वो दोनों जो नए टेबल बनेंगे उन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो कॉमन एट्रीब्यूट नहीं रहेगा तो आप उसके ऊपर जॉइन कमांड, यूनियन कमांड, इंटरसेक्शन कमांड यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर उनका सपोज कैसा कुछ कॉमन एट्रीब्यूट नहीं रहा तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा नल। और अगर इंटरसेक्शन नल आ गया तो इसका मतलब आपकी कंडीशन फेल हो गई, तो इसका मतलब आपका जॉइन लॉसलेस नहीं है, तो इसके बाद में आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा है कि अगर आप पहली पायरी पे चढ़ गए तो दूसरी पे आ जाओ, दूसरी पे चढ़ गए तो तीसरी पे आओ, लेकिन आप पहली से ही घसर गए तो फिर दूसरी पे आने का काम ही नहीं। अगर आप पहली टेस्ट में फेल हो गए तो दूसरी देने का मतलब ही नहीं है। तो ये होगी सेकेंड कंडीशन। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिलेशन, दैट इज सपोज एन एट्रीब्यूट इज कॉमन इन बोथ एंड R2, देन आइदर A शुड बी की इन R1 और R2। अब वो जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो क्या होना चाहिए, किसी ना किसी टेबल में वो प्राइमरी की होना ही चाहिए, वो किसी ना किसी टेबल में प्राइमरी की होना ही चाहिए। सपोज हम इस टेबल की बात करते, वील टेक एक बड़ा टेबल लेंगे कोई, जैसे अब ये एक टेबल है, तो आप अगर इस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, ये एक टेबल है और उसके बाद में देखो ये एक टेबल को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 मिनट, थ्रू दिस एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। वी हैव सीन द फंक्शनल डिपेंडेंसी। हाँ, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था, टीचर ID, टीचर एज और टीचर्स नेम। तो ID पर से एज और नेम हमको मिलता है, तो अब हमने क्या किया था, इसको सपोज ब्रेक किया दो, इसमें टीचर ID और सब्जेक्ट एक टेबल बनाया और उसके बाद में ओहो वी आर नॉट हैविंग दैट एग्जाम्पल, सो व्हाट विल डू, विल सी इट विथ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक खास तौर पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ओके ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग आ गए अभी। सो व्हाट विल डू, द थर्ड थिंग दैट वी हैव सीन इज दैट कि अगर इनमें कोई ना कोई जो एट्रीब्यूट है, जैसे रिलेशन R1 में और R2 में कोई ना कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट है A, और वो एट्रीब्यूट के बिना तो आप वो यूज ही नहीं कर सकते हो, तो वो जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की होना चाहिए किसी ना किसी एक इसमें, इस कॉमन, देन इट शुड बी अ की, या तो पहले टेबल में या तो दूसरे टेबल में। तो यहाँ पर हमारे पास है वो टेबल, यहाँ पर देखो एक टेबल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन, ID, नेम, एज, लोकेशन, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम। तो इसको मैंने स्प्लिट किया। अब स्प्लिट मैंने कैसा किया, आई हैव मेड 2 टेबल्स, ID, नेम, एज और लोकेशन, और दूसरे में क्या डाला फिर, डिपार्टमेंट
और डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन ईएमपी आईडी भी मैंने इसमें रखा। तो इन दोनों जो टेबल में है ईएमपी आईडी जो है यहाँ पर वो प्राइमरी की है। इन दिस टेबल ईएमपी आईडी इज अ प्राइमरी की, और यही टेबल है, यही एट्रीब्यूट है जो दोनों टेबल में कॉमन है। यहाँ पे ईएमपी आईडी इज अ प्राइमरी की, ये क्या है, ये जो है दिस इज और प्राइमरी की, ये यहाँ पर हमारी प्राइमरी की है। तो ये प्राइमरी की है और ये कैसे, दोनों टेबल में हमने कॉमन लिया। यहाँ पर भी है ये ईएमपी आईडी, ओके, दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और ये ईएमपी आईडी यहाँ पर भी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाती कंडीशंस, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जॉइन इज अ लॉसलेस जॉइन। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एट्रीब्यूट ऑफ R1 इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट ऑफ R2, देन देयर मस्ट बी वन एट्रीब्यूट R1, या फिर R1 R2 में से कहीं ना कहीं ये जो है एक की होना चाहिए R1, या तो पहले इसमें या तो दूसरे इसमें। और अगर ये कंडीशन सपोज फेल होती, अगर ये कंडीशन फेल होती, तो इसका मतलब ये जो है वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस नहीं है, दैट डिकम्पोजिशन इज नॉट लॉसलेस। इफ दिस चेक कंडीशन फेल्स, फिर तो इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। मतलब 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी थी कि दोनों टेबल का यूनियन जो है वो इक्वल टू द फर्स्ट टेबल होना चाहिए। सेकंड, दोनों टेबल का इंटरसेक्शन जो है वो नल नहीं होना चाहिए। और थर्ड, दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी एक टेबल में वहाँ की होना ही चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज जनरली प्रीफर्ड। तो इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू क्लास, सी यू सून, गुड डे, जय हिंद।